السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، صدر کانفرنس، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اس تاریخی مقام رام لیلا گراؤنڈ دہلی کے اندر منعقد ہو رہی ہے، اس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو چند کلمات کہنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے انسانیت کو درپیش مسائل اور اسلامی تعلیمات۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں ایک میسیج، ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس عظیم الشان کانفرنس کو منعقد کرنے والے اور اس میں حاضر ہونے والے جتنے بھی دام در میں قدم سخن احباب اخوان موجود ہیں یا حاضر ہیں جنہوں نے کیا ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے اور اللہ ان سب کو اس کا نیک اور اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، انسانیت کو درپیش مسائل، یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے، اگر میں اسے شمار کروں تو میرے لیے یہ وقت ناکافی ہوگا۔ مختصر یہ کہ آج انسانیت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے۔ کن کن گوشوں کو میں بیان کروں؟ حضرت غالب کے شہر میں غالب یاد آئے تو ان کا ایک شعر دماغ میں آیا کہ ہم کن کن مسائل سے الجھ رہے ہیں اور کیا کیا مسائل عالمی طور پر انسانیت کو درپیش ہیں۔ تو غالب نے اسی سرزمین دہلی میں کہا تھا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا زخمی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا زخمی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے، کہاں سے اور کس انداز سے میں آپ حضرات کی خدمت میں مسائل کا ذکر کروں۔ اس وقت عالم انسانیت ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ضرور ہے، جہاں ہر طرف چمکتی ہوئی کاریں اور روشنیوں کا یہ چھماکہ ہمارے سامنے ضرور موجود ہے، انسانی زندگیوں کی آسانیاں اور آسائشیں موجود ہیں، یقیناً موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، پوری انسانیت سسک رہی ہے، کراہ رہی ہے، ترس رہا ہے انسان سکون کے لیے۔ آج افراد اور معاشرے اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، مادہ پرستی عروج پر ہے، خاندان بکھرے ہوئے ہیں، بچے اپنے باپ سے بکھرے ہوئے، خدائی رہنمائی سے عاری ہے گونگی بہری اندھی جمہوریت ڈیموکریسی، بڑھتا کرپشن، بڑھتی غربت اور بے روزگاری کا یہ بھوت، عدل و انصاف کا فقدان، عالمی بدامنی، ماحولیاتی بحران، فرقہ وارانہ دہشت گردی، منافرت، عداوت، وسائل زندگی پر گونگوں بہروں کا تسلط اور ان کا قبضہ، صحت کے بڑھتے مسائل، عدم مساوات، علاقائی، نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تعصبات، دہشت گردی اور ماب لنچنگ، اس کی مختلف قسمیں اور شکلیں، الغرض آپ شمار کرتے جائیے، یہ تمام سب چیزیں آج ہمارے
दुनिया के अंदर आलम इंसानियत को दरपेश हैं। इस तरह के सैकड़ों मसाइल आज हमारे सामने हैं जिसमें आलम इंसानियत ने जिसमें आलम इंसानियत जकड़ी हुई है। एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। इन मसाइल के हल करने के लिए अफराद भी हैं, वसाइल भी, इंसान भी खड़ा हो रहा है और इंसानी इदारे भी मौजूद हैं। लेकिन किसी शायर ने कहा था कि मरीज़े इश्क पे लानत खुदा की, मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम माहौल में मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ आतुश को बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, इस्लामी तालीमात हमको क्या आवाज़ देते हैं। आज से 1450 बरस पहले या 1500 बरस पहले मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको याद होना चाहिए, उन्होंने हिल्फुल फजूल के नाम पर नबूवत और रिसालत हासिल करने के बाद भी उस मुआहदे को याद फरमाते थे। 20 साल की उम्र में आपने हिल्फुल फजूल के अंदर जो मुआहदा हुआ था, फजूल ये फजल से, फजल की जमा फजूल, 3 फाग मिलकर के एक जमा हुआ। वो लोग जो थे आपस में कत्ल गारत लिखवाने, वो फजल नाम था, इसी हिसाब से उनको फजूल का नाम दिया गया। और एक मुआहदे अमन हुआ था, मक्के की सरजमीन पर एक मुआहदा हुआ था, तमाम कुफारे मक्का, कुरैश और तमाम कबीले जमा होकर के, जिसमें नबी कायनात भी 20 साल की उम्र में आपने उस मुआहदे के अंदर शिरकत की थी। और आपने नबू और उसका मुआहदे की चंद बुनियादें थी। नंबर 1, हम एक दूसरे के गर्दनों को बिना वजह नहीं मारेंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे, अमन और सलामती के लिए कुर्बानियां पेश करेंगे और एक दूसरे की इज्जत व आबरू से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस तरह के चंद उसूल और कवायद थे जिसमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। और जब आप नबी बनाए गए उस वक्त भी आप ये कहते थे, याद करते थे उस मुआहदे अमन को, कि आज भी अगर दुनिया उस मुआहदे को कायम करती है तो मैं चाहूँगा कि मैं उसका एक मेंबर बनूँ और मैं उसके अंदर शरीक हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरी आलम इंसानियत बहरहाल जो कर रही है, लेकिन हमारे भारत के अंदर हम मुसलमानों को चाहिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आरजू को, इस तमन्ना को, हमें अल्लाह तबारक तआला ने एक खूबसूरत सा मुल्क भारत दिया हुआ है, हिंदुस्तान दिया हुआ है। इस हिंदुस्तान में रहने का सलीका सीखें, तरीका सीखें। हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान और मिलल के लोग रहते हैं, हमें उनके साथ कैसा तामुल करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। हिल्फुल फजूल का कि ये उसूल और ज़ाब्ते उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं इसकी तफसीलात नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं इशारे से बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस मुआहदे अमन को खुतबात के जरिए, किताबत के जरिए, तकरीरों के जरिए, जलसात के अंदर, कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के अंदर फैलाया जाए कि हम इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ कैसे रहें। हमारे दरमियान मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, गैर मुस्लिमों की एक कसीर तादाद है। हमें अगर अमन है, लेना है, तो हिल्फुल फजूल के तरीके पर हमें भी भारत के अंदर ऐसे मुआहदे अमन कायम करने हैं। महल्ले महल्ले, शहर शहर, जिस तरह हम जमीयतें कायम करते हैं, इसी तरह हमें गली कूचों में कमेटियां कायम करना चाहिए। चाहे किसी का भी त्योहार आए, चाहे किसी की भी ईद आए, एक खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। त्योहार इसलिए नहीं आते कि दहशत और उसके जरिए रोब फैलाया जाए। तो किसी के पूजा और इबादत का मकसद ये नहीं होगा कि दुनिया चीखे, कराहे, तड़पे और उस यतीम हो जाए और औरत जो है बेवा हो जाए। इसलिए नहीं त्योहार आते, खुशी और मसरत का पैगाम लेके आते हैं। लेकिन आज भारत का माहौल एक ऐसा बना दिया गया है कि जिसके अंदर जब कोई भी किसी का त्योहार आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजे दहल जाते हैं, पसीने आते हैं, खौफ और दहशत का एक माहौल होता है, घरों के अंदर लोग बंद हो जाते हैं। वजह क्या है? मुसलमानों, तुम्हारे पास वो नुस्खा कीमिया मौजूद है। वो नुस्खा कीमिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अहद और पैमान था जो 20 बरस की उम्र में उस चाहत को आपने हिल्फुल फजूल में देखा था और नबी बनाने के बाद भी आप उसको याद कर रहे थे। आज की मेरी तकरीर का इशारा और किनाया वही हिल्फुल फजूल के वो अमन और शांति बपा करने के ज़वाबित और उसूल हैं। आज हमें भी महल्ले महल्ले में अमन कमेटी कायम करके, पुलिस स्टेशनों से मिल करके, यहाँ के लोगों जिम्मेदारों से मिल करके, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तुम्हारा त्योहार आता है, हमारे 15-20 नौजवान साथ में रहेंगे जो आपके त्योहार के अंदर कोई भी गड़बड़ी और बदअमनी पैदा होगी तो जिम्मेदार हम होंगे। पुलिस का हाथ बटाइए, पुलिस के कंधे से कंधा मिला करके किसी का भी जलसा हो, किसी के भी जुलूस हो, किसी के भी इबादत के मकामात हो जहाँ भीड़ जमा होती हो, वहाँ हम मुसलमान भाइयों हम भी अपनी एक खिदमत पेश करें ताकि हमारा
सिसकियाँ ना हो, कोई चीख ना हो, कोई बेवा ना हो, कोई यतीम ना हो, कोई बेचारा रोने वाला, इस तरह के खून की नदियाँ ना बहाई जाएं। ये आज के इस कॉन्फ्रेंस का एहतराम इंसानियत सीखो, एहतराम इंसानियत का आज के मेरी तकरीर का लुब-ए-लुआब था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मिलजुल करके हमने भारत के अंदर अमन व सलामती, प्यार व मोहब्बत, उख़्वत व भाईचारगी के खुशबुओं से इसके जर्रे जर्रे को महकाएं, और उन दुश्मनान को जो हमारे भारत को टुकड़े टुकड़े के ऊपर लगे हुए हैं, उनके लिए अगर हथियार नहीं तो अपने दुआओं का हथियार इस्तेमाल करें। अल्लाहुम्मा अहदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते, या अल्लाह इन्हें नीस्तो नाबूद कर दे, इनके ऊपर कहर की बिजलियाँ उतारे। अल्लाह ताला हमें अमन व सलामती से अपने वतन में रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मिलजुल करके एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत करने, और देश और वतन और अपने ईमान और इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।